नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। We are continuing to do Bhagavad Gita, a greater life, the Bhagavad Gita way. So we have already started chapter number 6 and we have completed 17 shlokas. So in the last class, पिछले सत्र में, we learned that the art of living means to balance our eternal self with our current self. आज हमारा एक current reality है. We have a material body, we're having a materialistic viewpoint. We've forgotten our spiritual standing. ये हमारा current reality है. This is our current self. And then there is our eternal self. जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। हमारा जो नित्य स्वरूप है, जो कृष्ण का दास का स्वरूप है, वो हमारा सनातन स्वरूप है। तो इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस करके धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए। We cannot jump, we cannot do a drastic shift, because what happens when we do something like that, after some time, because of our materialistic tendencies, हमारे भौतिक मानसिकता ऐसा है, हमें वापस भौतिक जगत में खींच के लेके आएगा। So we have to drift slowly. Of course, if the Lord so desires and He blesses with His causeless mercy, we have seen examples of devotees who suddenly changed. हमारे जिंदगी में बहुतेक भी हम sudden changes देख चुके हैं, especially in the matters of spirituality. But further जब हमें progress करना है, तो we must be very systematically progressing. So stepwise we'll have to do. Of course, we have to take the straight path. टेढ़ा मेढ़ा जाना नहीं है. Straight path, which is the shortest path, we have to take. And then under the guidance of devotees, भक्तों के मार्गदर्शन से, गुरु की लिखी हुई मार्गदर्शनों से और भगवान की कृपा से और भगवान की इंस्ट्रक्शन से भी हमें slow and steady जाना चाहिए. That's why we have the program called Srila Prabhupada Ashraya, which extends to almost 2.5-3 years. It gives a chance to all of you and all those who desire to explore spirituality. जो आध्यात्मिक जो स्टैंडिंग है अभी, उसको जो टेस्ट करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे एक हंत से दूसरे हंत प्रोग्रेस कर सकते हैं. With we have made a program where Shraddhavan, you will enter Shraddhavan, then you will read books which introduces you to spirituality. फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, अपना चैंटिंग बढ़ाएंगे, फिर आप 2 और पुस्तक पढ़ेंगे. So in a very systematic way, slowly but surely, you are being exposed to spiritual life. तो इससे क्या होगा? तो इस ड्रिफ्ट से क्या होगा? The resistance from our materialistic mind and intelligence, we don't have to face it, we don't have to fight it much. वरना क्या होगा? Like the Mayavadi sannyasis or people who renunciate the world, thinking that जब कोई
बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड एज स्मशान वैराग्य. फॉर एग्जाम्पल समबडी passes away in the house, कोई घर में गुजर गए, तो 2-3 दिन के लिए सब वैरागी बन जाते हैं. यही सोचते हैं अरे यही जिंदगी है, आखिर सबको मतलब एक दिन मृत्यु का शिकार होना चाहिए, क्यों हम भागदौड़ की जिंदगी कर रहे हैं, why are we living this fast life, why are we struggling so hard, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं उस समय. लेकिन वो 2-3 दिन ही रहेगा, because we are so much influenced by our materialistic mind and the materialistic way of life today, that the world and the people around us and our own mentality will take us back onto the same track. आप देखते हैं एक माँ भी जो अपने बेटे को खो चुकी है, वो तो बोलेगी मुझे जीना नहीं है, मुझे मेरे बेटे के अलावा जीना नहीं है, उसके बिना जीना नहीं है. 4-5 दिन होता है ये. We are talking of mother who has got such an affection. तो 7 दिन 8 दिन के बाद फिर वो अपने प्राइम टाइम टीवी सीरियल देखते हुए नजर आएगी. Life will go on because we'll settle into our materialistic life, because we are being taught by the system, by our education, by the world कि यही जिंदगी है, जिंदगी में यही होता है. We are not taught to think beyond, we are not taught to think high. हमें ऊंची सोच का विचार आता ही नहीं है, because current reality of the world is it makes us settle down with things that this is how life is, यही जिंदगी है. तो फिर अरे मरना तो एक दिन है ही, तो ठीक है जिंदगी चलता रहेगा, तो ऐसे they become used to it. So that's the bane of our modern life, because पिछले जमाने में 5 साल के आयु से गुरुकुल का एजुकेशन स्टार्ट हो जाता था. तो उसमें what was the education in our Vedic education? It taught people how to live, कैसे जीना चाहिए ये सिखाता. और जीने के लिए जो साधन है उसके लिए थोड़ा वक्त भी देते थे, वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते थे, गुरु आइडेंटिफाई करते थे. लेकिन आजकल के एजुकेशन सिस्टम क्या है? इट मेनली फोकसेस ऑन हाउ टू मेक ए लिविंग, और सबसे बड़ा रुपया. सो मनी इज स्वीटर देन हनी. दैट इज हाउ द people are made to look at the world today. The looking glass is always having a dollar or a rupee with it. अगर डॉलर और रुपी नहीं है तो जिंदगी जीने लायक नहीं है, ये सिद्धांत हो गया. So that's why you see all the educational institutes. I have been telling this. आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, कोई मेडिकल या कोई और इसमें जाओ, MBA कॉलेजेस में जाओ, क्या प्रशंसा होता है? 100% प्लेसमेंट हो गया, मतलब 100% नौकरी मिल गया, मतलब आपने 100% अपने सारे स्टूडेंट्स को आपने नौकर बना दिया. So in the olden age it was not like this. People were taught to stand on their own legs. They were किसी और के मोहताज नहीं होते थे, वो किसी और के नौकरी में फंसते नहीं थे. It's a शूद्रा मेंटालिटी. किसी के अंडर नौकरी करना ये शूद्रा मेंटालिटी है. और कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सब लोग शूद्र स्वभाव के हो गए. So even the success of a college is measured on how many placements are done. 100% placement वाह वाह होता है. आपने क्या सिखाया? जीने की राह दिखाया किसी को, बस आपने पैसे बनाने का साधन दिखाया, कैसे आपको जॉब मिलना चाहिए ये सिखाया आपने. So of course there is no it is like a necessary evil right now because there is no alternative. But when we all us spiritualists start the thought process, we can bring about a change. We must be the change we want to see in the world. बस दुनिया को खोजने से कुछ नहीं होगा. हमें बदलाव चाहिए दुनिया में, वो बदलाव हमें पहले अपने आप में लेके आना चाहिए. फिर we can rub it off on others. At least we can inspire a few more people. तो ये networking से ये change हो सकता है. So of course today now there are many gurukuls that operate which teach some values of
life. But the actual Gurukul is which would teach only the value of life. And then for 25 years he would be in Gurukula, for 20 years. Last 5-6 years में उसको जीवन का साधन के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए वो सिखाते थे. So anyway, I don't want to go deviate further than the topics of our 6th chapter, because I felt it is very important. I told you this. For example, मंदिर में आज से ब्रज हेरिटेज फेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो क्या मकसद है? ताकि हम बच्चों को चाहे जितना भी कष्ट हो रहे हो, नथिंग इज परफेक्ट, देयर आर ऑलवेज deficiencies in service provided by us and the understanding of teachers. स्कूल का अपना प्रॉब्लम्स होता है, बच्चों का अपना प्रॉब्लम्स होता है, पेरेंट्स का अपना प्रॉब्लम होता है, बट एट द एंड what is that we achieve? Everybody is exposed to some spiritual insight. बच्चे आके श्लोका रिसाइट कर रहे हैं, कृष्णा थीम के आर्ट कर रहे हैं, तो somewhere for that 1 hour 2 hours they are Krishna conscious. Krishna conscious means what? Doing something, getting absorbed in doing something that's related to Krishna. That is Krishna consciousness. So some benefit out of it. So and then we also learned that जब बोलते हैं मन का निग्रहण करो, control your mind, the purpose of bodily regulation is not physical deprivation. तो ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मुझे अपने आप को डिनाई करना है या फिजिकली डिप्राइव करना है मुझे. It is being done for a spiritual purpose, a higher connect. Krishna is also not telling don't enjoy. Krishna is not telling don't get married. Krishna is not telling, खुद गृहस्थ थे, उनके सारे महाजन, out of the Mahajan, 12 Mahajans, half of them are grihasthas. So even with married life, family life, spiritual progress is possible. It's not that brahmachari, sannyasi ही spiritually progress करेंगे. लेकिन it is more conducive. It is like it is smooth sailing for them, brahmacharis and sannyasis. Although Kali Yuga doesn't spare anyone. So grihastha को भी grihastha brahmachari बोलते हैं, because he has to lead a life of regulation. Not that he is married and he can do whatever he likes even with his married wife. So he has to have some regulation. It's not for physical deprivation, it's for a higher purpose. So regulation is the road to realization. तो अगर हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, तो हमें अपने जीवन को रेगुलेट करना चाहिए. We must know how much to work and how much to enjoy and how much to eat, how much to sleep, optimize. We must optimize things in our life, and that is very clearly given in Bhagavad Gita. And that's why, and this is how it would be taught in Gurukula, how they could optimize the resources in their life, including their time or whatever they possess. So today we will start with shloka number 18. Until now, I just summarized what we did up to shloka number 17. Shloka number 18 basically is talking about the activities of an yogi. Yada viniyatam chittam atmanyevavatishtate nishpraha sarva kamebhyo yukta iti uchyate tada. So when the yogi, by the practice of yoga, yukta iti uchyate tada, disciplines his mental activities. Yada vinayatam chittam, mind, heart, vinayatam, regulated. The meaning given here, particularly disciplined. जो शासन, अनुशासन लेके आएंगे अपनी जिंदगी में, and becomes situated in transcendence. Atman eva vatisthate. तो क्या होगा? Devoid of all material desires, निष्प्रह सर्व कामेभ्यो. तो सारे इंद्रिय अर्जस को वो रेगुलेट करेगा, not restrict, regulate, knowing how much to indulge and when not to indulge.
then he becomes situated in transcendence. एवावतिष्ठते, आत्मनेवावतिष्ठते, आत्म साक्षात्कार उसको होता है। तो किसको होता है? यदा विनयतम चित्तम, who disciplines his mental activity. So the root way of becoming a spiritual person is by controlling our mind. It is a central point. Mind को control करेंगे, मन का निग्रहण करेंगे, तो हम अपने आध्यात्मिक प्रगति को देख पाएंगे. So the activities of the yogi are distinguished from those of an ordinary person by its characteristic cessation from all kinds of material desires. निस्पृह सर्व कामेभ्यो, सारे भौतिक मानसिकता को वो बाजू में रख देता है. Not that he is not going to lead a life in material world. He is going to continue. He is going to do his duties. जो अपना प्रोफेशन है, जो अपना रिलेशनल ड्यूटीज है, जैसे कि माँ बेटे की देखभाल करेगी, बेटी की देखभाल करेगी, जैसे कि टीचर स्टूडेंट का देखभाल करेगी, अपना भी सैलरी के बारे में सोचेगी और अपना सर्विस देगी. लाइक दिस सर्विसेस विल बी डन एंड कृष्णा वांट्स दैट. कृष्णा इज नॉट टेलिंग अर्जुना कोई बात नहीं है, आप क्षत्रिय हो, कोई बात नहीं है, छोड़ दो सब कुछ और वन में चले जाओ. ही इज नॉट टेलिंग दैट. ही इज चैस्टाइजिंग अर्जुना. कैसे क्षत्रिय हो तुम? क्षत्रिय होके तुम बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो भी धर्म युद्ध. जो अन्याय कर रहे हो उस लोगों को आप सामना नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सो ही इज टेलिंग यू डू योर ड्यूटी, डोंट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी. बट वी मस्ट नो डूइंग माय ड्यूटी, अगेन यही रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके, इसको मतलब रॉन्ग मीनिंग देके भौतिक जगत में लोग काम करते हैं. वर्क इज वर्शिप, वर्क इज नॉट वर्शिप if Krishna is not in the center. Work is worship only when Krishna is in center and you are working as per the instructions of Krishna, Guru and devotees. You're doing your profession as per their instructions. Otherwise you're doing just saying that hard work, I'll go on working, that is not considered as work is worship. Work is worship नहीं हो सकता, वो तो केवल काम है. So characteristic cessation from all kinds of material desires, of which sex is the chief. तो काम उत्तेजना जो है भौतिक जगत में सबसे बड़ा उत्तेजना है, जो हमें भौतिक मानसिकता में घेर के रखेगा, बंदी बना के रखेगा. Again, Krishna is not telling that we must give up sex. Krishna is not telling that you must never have sex. Krishna is only telling regulate it. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु. विहारा रिक्रिएशन, तो एंजॉयमेंट भी चाहिए, नहीं युक्ता. यू मस्ट नो हाउ टू रेगुलेट योरसेल्फ. यू मस्ट नॉट मेक इट एज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्वैलो यू. आपको निगल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. हैबिट्स मस्ट मेक ए मैन. इट मस्ट नॉट mislead a man and break him. A perfect yogi is so well disciplined in the activities of the mind that he can no longer be disturbed by any kind of material desire. तो योगी कौन है? जो भौतिक मानसिकता से बाहर आ चुका है. जो भी काम करेगा भगवान का नाम लेगा और भगवान की मार्गदर्शन से वो काम करेगा. This perfectional stage can automatically be attained by persons in Krishna consciousness. तो आप जो श्रील प्रभुपाद आश्रय जो कोर्स में आप सब भाग ले रहे हो, उससे क्या होगा? धीरे धीरे, स्लोली स्टडीली वी विल बिकम स्पिरिचुअली uplifted and one day we will purify ourselves. So we must have patience. We must not say that कल ही मुझे शुद्ध होना है, वो नहीं होगा. तो अशुद्ध विचार आते रहेंगे, अशुद्ध काम भी करते रहेंगे हम, लेकिन बट without punishing ourselves, relying on the Lord, we must go ahead with our life. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, शादी आज हुआ है और दुल्हन बोल रही है मुझे कल बच्चे चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा. 9 महीने तो कम से कम लगेगा. So everything takes time. So we must have dhairya. Dhairya means patience. We must know that if I stick to the path, then despite all my shortcomings,
despite all my fall downs, if I keep walking, then one day I will reach my spiritual goal. So the name of the game is we must keep walking. कभी हार नहीं मानना चाहिए. So all this is not for the material world. ये सब all these materialistic authors who are writing self motivational books, यहाँ से वेद ग्रंथों से ले लिया और उसको materialistic world में apply कर लिया. Don't give up. Have confidence in yourself. Be positive. लेकिन वो भौतिक मानसिकता के और खींच के लेके जा रहे हैं. लेकिन बी पॉजिटिव. व्हाट इज बी पॉजिटिव? गोप्तृत्व वर्णम रक्षस्यति इति विश्वासो. You must be satisfied with what Krishna is giving you. You must work, but then leave the result to the Lord. And rakshasyati iti vishwaso. This is being positive. That Krishna will protect me. जब मैं उनके दिए हुए शासन को पालन कर रहा हूं, तो वो तो मुझे डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे. ये विश्वास रख के जाना, ये पॉजिटिव है. दिस इज बी पॉजिटिव. बी सेल्फ रिलायंट. व्हाट इज बी सेल्फ रिलायंट? तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत. वी मस्ट नॉट अलाउ आवर माइंड टू डिग्रेड अस. वी मस्ट थ्रू द माइंड uplift us. This is being self-reliant. Means अपने मन को निग्रहण में लेके उसको मजबूत करके after making it strong, we must try to uplift ourselves. किसी और के मन से तो नहीं होगा. किसी और के मन के विचार हम ग्रंथों से पढ़ सकते हैं. So that is another intelligent way. We learn from the failures of others. We learn from the success of others. And then we learn from the instructions of the Lord, instructions of Guru, the directions of the devotee. And then we go ahead in our life. That's an intelligent way of living life. But you have to do your work. ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने बोल दिया सुबह जल्दी उठो, बस सुन लिया और सोते रहे. ऐसा तो नहीं चलेगा. आपको उठना चाहिए. Like the birds that are flying, एक फॉर्मेशन करके फ्लाई करते हैं. You know, it's so scientific. क्योंकि वो जो V फॉर्मेशन होता है बर्ड्स का, उससे क्या हो जाता है, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं मिलता है बर्ड्स को, तो आसानी से दे कैन ऑल फ्लाई विद दैट फॉर्मेशन. जो आगे है बर्ड, वो कुछ समय के बाद वो थक जाएगा, वो पीछे आएगा, एक और बर्ड आगे जाएगा, इट विल बी फ्रेश और फ्लैप करते जाए. बिकॉज द बर्ड ऑन इन द फ्रंट हैज टू डू द मैक्सिमम वर्क. जो पंछी आगे खड़ा है, आगे फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो वो थक जाता है. सी देयर इज सच अंडरस्टैंडिंग इवन इन द बर्ड वर्ल्ड. तो वो थक जाएगा तो दूसरा फॉरवर्ड आ जाएगा, उसको पता चल रहा है कि ये थक गई है, तो उसको पीछे कर देती है और कोई और बर्ड आगे जाती है. सो इन ए कम्युनिटी लिविंग दिस इज व्हाट हैपेंस. भक्तों के समागम में क्यों रहना चाहिए? दिस इज व्हाट हैपेंस. जब आप थक जाएंगे, आपके आगे भक्त आ जाएंगे और दे विल लीड यू एंड दे विल टेक यू फॉरवर्ड्स. भक्त भी थक जाएंगे तो उनके सीनियर डिवोटीज उनके सामने आएंगे. या फिर इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड रैपो विथ योर प्रीचर, यू कैन आल्सो बी अ हैंड इन ग्लव विथ हिम. सो आप दोनों साथ साथ चल सकते हैं. So Srimad Bhagavatam में how to do it, how to make our life perfect, इसमें दिया गया है. Last few classes ago I said the shloka will come later. सवै मन कृष्ण पदारविंदयो. कैसे हमें हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहना है? वेरी सिंपल. सवै मन कृष्ण पदारविंदयो. ये अम्बरीश महाराज ऐसे करते थे. अम्बरीश महाराज जो शुद्ध भक्त थे ऐसे करते. He was a king, he was a राज ऋषि, but he was a very great devotee. क्या करते थे? सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर. मन को कृष्ण के पाद के ओर लेके हमेशा रखते थे. वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने. जब बात करते थे केवल वैकुंठ को गुण अनुवर्णने करते थे, वर्णन करते थे. भगवान कृष्ण की स्तुति करते थे, उनका जय जयकार करते थे. करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु. हाथ को वो मंदिर मार्जन में उपयोग करते थे, मंदिर निर्माण कार्यों में उपयोग करते थे.
मंदिर निर्माण कार्य में उपयोग करते थे कि मतलब क्या है कि आप जाके ईंट रखेंगे? नहीं, वो तो ईंट रखेंगे जो काम कर रहे हैं, तो आप भी सहायता, आप भी उसमें भाग ले सकते हो। कैसे? आप कमा रहे हो, तो दैट यू आर डूइंग विथ योर हैंड्स, द एनर्जी ऑफ योर हैंड्स, व्हेन यू डोनेट, सो दैट एनर्जी ऑफ द हैंड्स इज डोनेटेड टू द वर्क ऑफ द लॉर्ड। सो ये मंदिर मार्जिनादिषु मंदिर निर्माण, उसमें भी काम आ रहा है। देन श्रुतिम च अकार, श्रुतिम च अकार अच्युत सत्कदोदे, कान केवल हरे कृष्ण मंत्र को सुन रहा है, कृष्ण का गुणगान जो कर रहा है, कृष्ण कथा है वो सुन रहा है। दैट्स व्हाई इवन इफ आई टेल यू टू अटेंड ऑल 365 डेज भगवद गीता क्लासेस, यू शुड अटेंड, जितना हो सकता है आपको अटेंड, एक नहीं, दो नहीं, 4 अटेंड कीजिए, because it is good for you, but it must be from bona fide source. So it must be from a source that is coming from parampara. Then मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना, तो आंखों का ये इस्तेमाल हो गया और मन भी वहां पे केंद्रीकृत हो गया। दृशो तद भृत्यगात स्पुषे अंग संगमम, और जो हम सबका कार्य है, तो भगवान को, भगवान के दंडवत करने में, भगवान की सेवा करने में उपयोग कर रहे हैं। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, तो the lotus, the flowers that are offered to the Lord's feet, the tulsi that is offered to the Lord's feet, उसको लेके सूंघना और उसको उसका स्वाद लेना. This is the perfection of tongue, eating Krishna prasadam. This is the perfection of the nose. Then श्रीमद तुलस्य रसनाम तदर्पिते, तुलसी पत्ता जो भगवान को चढ़ चुका है, चरना तुलसी, उसको ग्रहण करना. पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, हमारे पास पैर है तो जितना हो सके मंदिर की तरफ जाना चाहिए. So again we must do our duties, भौतिक ड्यूटीज सब हमें निपटाना है, and we must give adequate time for these activities also. But a consciousness must be Krishna consciousness. शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, सर का भी उपयोग किस लिए कर रहे हैं? दंडवत करने के लिए भक्तों को, गुरु को, भगवान को, राधा कृष्ण को. कामम च दास्ये न तो काम काम्यया, और जो हमारा काम इच्छा है, हमारी जो इच्छा है वो भी हम कृष्ण भावनामृत में ही उपयोग करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे और जो भी इच्छा है उनके मार्गदर्शन से इसी कृष्ण भावनामृत कार्यों में हम उसको उपयोग करेंगे. यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति ही, तो उत्तम श्लोक जनाश्रय, जो भगवान के भक्त है, जनाश्रय, उत्तम श्लोक मतलब कृष्ण, जनाश्रय जो उनके आश्रय ले चुके, ऐसे भक्त के संग रहने का रति, आकर्षण, रुचि होना चाहिए. तो इसलिए आपको इस स्टेज में हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे प्रभु जी से मिलना है, मुझे प्रवचन सुनना है, मुझे प्रभु जी से बात करना है. Why do you feel like this? That is because you are developing निष्ठा, आसक्ति, रुचि, जो बहुत ही अच्छी बात है. That is a measure of the fact that you are progressing spiritually. ये आपको दर्शा रहा है कि आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं. जैसे कि गोपियां काम वासना रखते हुए कृष्णा के पास गई, लेकिन कृष्णा शुद्ध है, तो कृष्ण के पास जाते ही वो सारे काम वासना शुद्ध भक्ति में बदल गए. तो this is why we must always connect with Krishna. जो भी हमारे अंदर कलमश है वो कृष्ण से कनेक्ट होने में शुद्ध हो जाता है. So I am spending a lot of time on this shloka because it's a very key shloka, especially the explanation about what Ambarish Maharaj did in the purport. So this is how we must lead our lives, where we can absorb all our senses, mind, intelligence, profession, tendencies, even karma in Krishna's service. So that will be facilitated you by talking it out with your devotees. We should not
देखिए, लॉयर के साथ, डॉक्टर के साथ और आपके स्पिरिचुअल गाइड के साथ कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप छुपाएंगे तो आप ही का मतलब घाटे का सौदा हो जाएगा। दैट मीन्स यू आर मेकिंग losing transaction here, because if you are not going to tell the doctor all your symptoms, then he cannot diagnose your disease correctly. If you cannot tell all the things of a particular case to your lawyer fully, then he cannot win the case because you have hidden things. तो वो ऐन वक्त पे दूसरा लॉयर उसको रख देगा, तो जज उसको ना मानेगा। सिमिलरली विथ योर स्पिरिचुअल गाइड, तो आपको संकोच नहीं करना चाहिए। दे आर देयर फॉर दैट। स्पिरिचुअल गाइड इज नॉट जस्ट टू टेक यू फॉरवर्ड ओनली इन स्पिरिचुअल लाइफ। आपके भौतिक गतिविधियों को भी उनको एक शेप देना उनका एक कर्तव्य है। आपकी इच्छाएं, आपके काम वासना, ये भी उसको मतलब to take it in the right direction. That is the duty of your preacher. You should not be hesitant. If you are not, if you feel a male preacher, then his wife will be there. You can talk to them. But of course, I'm telling the principle is you should not try to hide anything from your preacher, including me, even though if I'm a male person. That's the principle. तो इसमें आप ही का फायदा होगा. So all these transcendental activities are quite befitting a pure devotee. तो जब हम यही तो भक्ति है, सब कुछ भगवान के सेवा में अर्पण करना, हाथ पैर दृष्टि, सुनने का शक्ति, बोलने का शक्ति, रुचि का शक्ति, आसक्तियों का शक्ति, और हमारा सोच विचार का शक्ति, बुद्धि का शक्ति, मन का शक्ति, अहंकार का शक्ति, सब कृष्णा के सेवा में हमें निचावर करना है. This transcendental stage may be inexpressible subjectively by the followers of the impersonalist path, because it becomes very easy and practical for a person in Krishna consciousness. मायावादी को ये बहुत भौतिक प्रगति नहीं, आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सब कुछ नीति नीति बोल रहा है, भाग रहा है. अरे नारी का संग करूंगा तो फंस जाऊंगा, भाग रहा है. So he must face it. He must, बिकॉज वो भाग रहा है कहां से? अपना मन को साथ में लेके भाग रहा है ना, तो कहां जाके छुपेगा? मन तो साथ में ही है, तो सारे जो इच्छा है वो तो जहां भी बैठेगा, बिले में भी बैठेगा, कोई गुफा में जाके बैठेगा, मन है उसके साथ, वही मन है, वही इंद्रिया है, वो तो काम करेगा ही. सो द सिचुएशन शुड बी, मस्ट नॉट रन अवे फ्रॉम, वी मस्ट फेस इट विथ गाइडेंस. And that is possible only in Krishna Bhavanamrit, in this movement. Why? Because it is a practical movement, hands-on movement. It is not a hand-fold movement. सब कुछ मैंने छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं करना, करूंगा तो फंस जाऊंगा, पैसे लेंगे तो फंस जाएंगे. No, take money, use it for the Lord. If somebody is giving you money, आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी दे रहे हैं, आप नहीं पैसे नहीं चाहिए, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना. Accept it, it's your hard-earned money. Use it for the Lord. Use a percentage of it for your life. Use a percentage of it for savings, and use a large percentage of it for the service of the Lord. तो आप सोच रहे होंगे यार मंदिर का आदमी है प्रभु, तो प्रभु ऐसे ही बोलेंगे. तो you should also know that I am also staying outside. मैं भी एक गृहस्थ हूँ, मैं भी मतलब अपना जीवनोपाय मुझे ही देखना है. I am not a temple devotee. तो मुझे अपना जो भौतिक गतिविधि है वो मुझे देखना चाहिए. मतलब I have to take care of my house, my family. I have to ensure that things are there in the house. For that पैसे है, ये सब मुझे बंदोबस्त करके रखना चाहिए. That is my duty. And at the same time, take them all in the spiritual path. Take all those people who are getting connected with me, like all of you, in the spiritual path. That is what I should be doing as my duty. प्रभु के अंदर भी बहुत कलमश है. So Prabhu is not your ideal. Your ideal is Prabhupada. Prabhu is there to take you through the process that Prabhupada has taught us, so that together we can go through the journey. So we must not get bewildered when we see devotees. Oh, उनके अंदर भी इतना कलमश है, उनके अंदर भी गुस्सा है, उनके अंदर भी काम वासना है. We are not here to judge them.
they are also going in the same path. एक अस्पताल जैसा है. डिवोटी कौन है? अस्पताल में पहले ही भर्ती हो चुके हैं, मतलब दे आर एक्सपीरियंस्ड पेशेंट्स. आप अभी अभी भर्ती हो रहे हैं, लेकिन है दोनों मरीज ही. लेकिन जो मरीज हॉस्पिटल में ज्यादा वक्त रह चुका है, तो और जो ऐसा हॉस्पिटल है जो एक हॉस्पाइस की तरह है, वेलफेयर की हॉस्पिटल है, तो वो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं. डॉक्टर भी ऐसे मरीजों को उपयोग करते हैं. थोड़ा आप इनको समझा देंगे कि इनको क्या क्या करना चाहिए. आप जो कर रहे थे ना, वही करना है. जैसे डॉक्टर भी कभी कभी यूज करते हैं. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डन इन द टेम्पल. हम भी भौतिक विचारों के मरीज हैं, आप भी भौतिक विचारों के मरीज हैं. आप एंट्री लेवल पे हो, हम थोड़े आगे जा चुके हैं, बस वही डिफरेंस है. वी आर देयर टू होल्ड यू बाय द हैंड एंड टेक यू फॉरवर्ड. सो in the devotional service of the Lord, therefore, these prescribed activities are called archana. अर्चना का मतलब क्या है? Engaging all senses in service of the Lord. अर्चना का मतलब है मेरे सारे जो भी मेरा है, इंद्रियों से लेके बाहरी चीज जो भी मेरा है, सब भगवान की सेवा में लगा देना. The senses and mind require engagements. Simple abnegation is not practical. मन को शांत रखना है का मतलब ये नहीं कि कोई कार्य नहीं करना है, नहीं रह सकते शांत. बिकॉज एक्टिविटी इज द सिम्टम ऑफ लाइफ. हमें कोई कार्य करते रहना चाहिए. एंड बेटर द वर्क बी कृष्णा कॉन्शियस वर्क. द वर्क दैट आई एम डूइंग, चाहे मैं इंजीनियर हूं, चाहे मैं टीचर हूं, चाहे स्टूडेंट हूं, चाहे प्रिंसिपल हूं, चाहे डॉक्टर हूं, चाहे पेशेंट हूं, बट the ideal way of going through life is finally we must connect with Krishna. हमारे सारे गतिविधियां कृष्णा से कनेक्ट होना चाहिए. So the transcendental engagement of the senses and the mind is required. तो engagement चाहिए मन को. So you cannot retire and say that I will not do anything. हमें करते रहना चाहिए. So this karma is called bhakti yoga. कार्य करते रहना, ये भौतिक कर्मा नहीं है, ये दिस इज भक्ति योगा. इट इज अ परफेक्ट प्रोसेस फॉर ट्रांसेंडेंटल अचीवमेंट व्हिच इज कॉल्ड युक्ता इन द भगवद गीता. तो बहुत सारे श्लोक में युक्त इति उच्यते, युक्ता युक्ता योगा योगा कृष्णा बोल रहे हैं. किसके बारे में बोल रहे हैं? कनेक्टिंग विद कृष्णा, बीइंग सिचुएटेड इन आवर स्पिरिचुअल सेल्फ, गोइंग बाय द स्पिरिचुअल पाथ. That is what is being taught. So आज पूरे क्लास में मैंने एक ही श्लोका किया, because I felt it's a very important, if not shloka, the purport was very important. So it's okay. I said I'm not in a hurry to complete. In 100 classes, I have to complete 6 chapters, and we are very well on the line. 300 sessions I will take to complete Bhagavad Gita over a period of 3 years. So it's a slow and steady progress. So thank you for joining me today. We will meet again tomorrow. With this closing statement, I will end. Spirituality is not about abandoning things, but about reclaiming the self. तो अपने आप को पाना, ये spirituality. चीजों को छोड़ना, ये spirituality नहीं है. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.